Hi everybody, welcome to my channel Geology World. So this is my first video and we are going to cover the entire class 11th syllabus of Geography, West Bengal Board, and this is the first chapter, Geography as a Discipline, that we are going to start today. So the introduction part says that geography is a science. Why do we call geography a science? It is called a science because in science we read about facts, and in geography also we read facts. It is a science of nature and social science. Science means special knowledge arranged in an orderly manner. So why do we call geography a science? It is because we learn about nature and social science in geography. It is the special knowledge about the nature and the earth and the atmosphere and everything that you have around you, the land, the water, the soil, everything. It is contained in the subject called geography. So geography as a discipline is very vast. It's almost everywhere that your eyes can reach. So geography is also called the mother of sciences. यहाँ पे बात हो रही है जब पहले आदमी दुनिया में आया था तो क्या था, कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था. He had nothing to do but to wander about in the forest with wild animals and wild trees and plants. He had no food to eat, no shelter to live and no clothing to put on. अब यहाँ पे जब इंसान आया तो उसके पास ना कुछ खाने को था, ना कहीं रहने को था, ना कुछ पहनने को था. तो उसने क्या किया? He had managed himself somehow to live on fruits, roots gathered from forest. तो नेचर ही था जिसने मदद की इंसान की जीने में. पेड़ों से ही हमने कपड़े भी बनाए, खाना भी वहीं से लिया और गुफाओं में रहे. तो शेल्टर और खाना दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें नेचर ने ही दी इंसान को. इन दिस मिजरेबल stage of life condition, he wanted to understand the laws of nature. So what are these laws of nature? He tried to know the condition of natural environment. Natural environment की condition जैसे कि बारिश होना, धूप का आना या natural calamities. Now the most important thing was forest fire, which helped in the discovery of fire foremost thing. And the knowledge of process of making fire was perhaps his first basic concept of science. So the first basic concept of science for humankind since the beginning is fire. The discovery of fire is the most important thing. Since then his chariot of victory has been running on, and in this modern age of technology and computer it has been going ahead in the speed of rocket. और आज तक हम नेचर से ही जुड़कर जीते हैं. नेचर से अलग होकर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकते. नेचर के साथ ही इंसानों का सर्वाइवल पॉसिबल है. और इसी को हम पढ़ते हैं किसमें? ज्योग्राफी में. ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि इंसान का, ह्यूमन बीइंग्स का नेचर के साथ क्या कनेक्शन है और नेचर ह्यूमन बीइंग्स को किस तरीके से अफेक्ट करती. इन द सोलर सिस्टम द अर्थ रैंक्स इन द 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड वॉल्यूम. साइज़ और वॉल्यूम के हिसाब से अर्थ का रैंक 5th पोजीशन पे. 51,072,000 स्क्वायर किलोमीटर का सरफेस एरिया है. तो इसके हिसाब से क्या है, इन कंपैरिजन टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ प्लैनेट अर्थ, इंसान क्या है, बहुत छोटा सा क्रीचर है. इतना बड़ा अर्थ और इंसान बहुत छोटा सा क्रीचर है उसमें. तो अभी तक हमें पूरी तरीके से अर्थ की ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं है. बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता, जैसे कि अर्थ के ऊपर क्या है, इननमरेबल हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, वेल्स एंड डेल्स, केप्स एंड बेज, सीज एंड ओशंस, फ्लोरा एंड फौना. तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है अर्थ की. पीपल ऑन दी अर्थ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैविंग डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग. अब जो ज्योग्राफी की मेन डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ज्योग्राफी डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेस दीज स्पेशल वेरिएशंस ऑन द ग्लोब इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना. तो ये जो 4 फिनोमिना होते हैं, नेचुरल, फिज़िकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन, इन फिनोमिनास के हिसाब से ज्योग्राफी जो है ग्लोब को एनालाइज करता है, अर्थ को एनालाइज करता है.
सो प्रोफेसर हटिंगटन ने एक डेफिनेशन दी है, द सेंट्रल थीम ऑफ ज्योग्राफी इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पार्ट प्लेड बाय द लैंड, द वाटर and the air in causing the plants, animals and people of one region to differ from those of the other region. मतलब कि जो लिविंग थिंग है उसका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कितनी उनकी लाइफ इफ़ेक्ट होती है, ये बताने का काम करता है ज्योग्राफी। जैसे कि जो लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये ज्योग्राफी का जो है ये बायोटिक पार्ट है ज्योग्राफी का। तो ये जो बायोटिक पार्ट्स है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, इनको किस तरीके से इफेक्ट करता है, यही बताने का काम क्या करती है, ज्योग्राफी करती है। प्रोफेसर मैकने ने अर्थ को एज द होम ऑफ मैन डिस्क्राइब किया है। द वर्ड ज्योग्राफी वॉज कॉइन्ड इन द 3rd century BC बाय अ ग्रेट स्कॉलर हु लिव्ड इन इजिप्ट नेम्ड एराटोस्थनीस। अब एराटोस्थनीस जो थे वो एक ग्रीक स्कॉलर थे जो कि 3rd century BC में जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को कॉइन किया था। सो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये किसने दिया है, एराटोस्थनीस ने। द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जियो और ग्राफीन। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफीन मतलब होता है टू डिस्क्राइब या टू राइट। तो ज्योग्राफी क्या बना, द अर्थ्स डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ की डिस्क्रिप्शन को ही ज्योग्राफी बोलते हैं। अर्थ को डिस्क्राइब जब किया जाता है तो उसी को ज्योग्राफी बोलेंगे। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी का जो सेंट्रल थीम क्या है वो है, पहला तो ये कि इट इज़ द होम, अर्थ इज़ द होम ऑफ मैन, ठीक है। और दूसरा, प्रोफेसर जेम्स फेयरग्रीव ने कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो दूसरा क्या है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन, ये भी ज्योग्राफी का सेंट्रल थीम है। और प्रोफेसर कार्ल रिटर ने कहा है ज्योग्राफी द साइंस ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का साइंस है। तो 3 डेफिनेशन हमें पता चले, पहला कि ये इंसान का घर है, दूसरा कि ये साइंटिफिक स्टडी है ऑफ अर्थ, तीसरा कि ये ज्योग्राफी जो है अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो दस ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ्स साइंस, अर्थ की साइंस का ही डिस्क्रिप्शन या स्टडी ज्योग्राफी कहलाता है। जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्योग्राफिकल वर्क के, वो क्या क्या है, एम्फेसिस ऑन लोकेशन, जो लोकेशन है उसके ऊपर एम्फेसिस देना कि वो लोकेशन कैसी है। दूसरा है एम्फेसिस ऑन सोसाइटी लैंड रिलेशन, अब लैंड के साथ या उस लोकेशन के साथ सोसाइटी का क्या रिलेशन है उस पर एम्फेसिस करना, जिसे हम मैन इन्वायरमेंट रिलेशन भी बोल सकते हैं। तीसरा है एम्फेसिस ऑन रीजनल एनालिसिस और एरियल डिफरेंशिएशन, अब उसी रीजन में, उस लोकेशन में कितने डिफरेंसेस डिफरेंट प्लेसेस पे पाए जा रहे हैं, कितना वहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसको देखना भी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफिकल वर्क का। अगर कोई भी एनालिसिस करना चाहता है किसी भी एरिया को तो उसे ये 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। स्कोप देखते हैं अब, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। स्कोप तो हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का बहुत वाइड है, इसमें क्या क्या आता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आता है। पूरा इन्वायरमेंट, पूरा अर्थ का सरफेस, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, ये सब कवर करता है ज्योग्राफी। तो लैंडफॉर्म और फिज़िकल फीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं, उसके स्कोप में आते हैं। जैसे कि अर्थ सरफेस एंड ओशन फ्लोर, क्लाइमेटिक कंडीशन, climatic regions, work of the agents of nature, natural vegetation, animal world, the socio-economic aspect of geography। इसमें क्या क्या आता है, मैन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है पूरी तरीके से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो पूरी तरीके से लैंड पे ही डिपेंड करता है, ज्योग्राफी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इस तरह से क्या हुआ, ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स की भी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अब एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे टाइम के साथ साथ ज्योग्राफी इवॉल्व हुई और उसमें क्या क्या नई नई डिस्कवरीज़ होती गई, और वो किस किस ने की। तो जब से दुनिया बनी है, सोसाइटी बनी है, सिविलाइजेशन बना है, लोगों ने जब से ऑर्गेनाइज तरीके से रहना शुरू किया है, ज्योग्राफी भी तभी इवॉल्व हुई।
तो ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स ज़्यादा जोग्राफ़ी के बारे में लिखते थे, क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे जाते थे और वही चीज़ों को क्या करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे। तो इतना जो ट्रैवल करते थे वही लोग ये सब ऑब्ज़र्व करके उसके बारे में लिख सकते हैं। The writings of Indians, Greeks, Chinese and Arabian scholars had focused on the geographical thoughts of those days. तो ग्रीक्स, चाइनीज़ और अरेबियन स्कॉलर्स ने शुरुआत की जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की। अथर्ववेद जो कि एक इंडियन एंशिएंट लिटरेचर है, वो 10th सेंचुरी BC में आया। उसमें क्या है, उसमें डिस्क्रिप्शन अथर्ववेद में क्या है, अबाउट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस और किस तरीके से लिविंग और सेटलमेंट होते थे उस ज़माने में। ठीक है, किस ज़माने में, 10th सेंचुरी BC के टाइम पे, उसके बारे में अथर्ववेद बताता है। सो इट वाज इन द 6th सेंचुरी BC जब 6th सेंचुरी BC में एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे जिनका नाम था थेल्स फर्स्ट गिव द आइडिया ऑफ द शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का शेप और साइज़ जब किसी ने सोचा भी नहीं था, तब थेल्स ने 6th सेंचुरी BC में कैलकुलेट करने की कोशिश की थी कि अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ का साइज़ क्या है और शेप क्या है। इट वॉज अबाउट 2000 years ago in the 2nd century BC, Eratosthenes, a Greek by birth and a resident of Egypt, was the first man to measure the circumference of the earth. So the circumference of the earth was measured by Eratosthenes. Eratosthenes was the person who first time calculated the circumference of the earth. He observed that each year about 21st June near Sin, modern Aswan, the sun appeared directly overhead at midday. तो 21st जून उन्होंने देखा कि 21st जून एक ऐसा दिन है जहाँ पे जो सूरज है वो सब मिड डे, मतलब दिन के टाइम में 12 बज रहे होते हैं, नून के टाइम में जो सन है वो सबसे ज़्यादा जो तेज़ होता है उस टाइम पे। तो 21st जून क्या है, सबसे गर्मी वाला दिन होता है, सबसे ज़्यादा हीट उसी दिन होता है, समर के टाइम में, क्योंकि जो सूरज उस टाइम पे होता है वो ओवरहेड, मतलब बिल्कुल ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल सर के ऊपर, ऐसा लगेगा कि इतनी गर्मी उस दिन होती है। एट द सेम टाइम एट Alexandria, a little north of Aswan, the midday sun was not directly overhead but made an angle of 7 degrees. He knew that the distance from the Aswan to Alexandria was about 5000 stadia. अब यहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अर्थ का सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट किया। दो सर्कमफ्रेंस कुछ कितना निकला, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ वाज अबाउट 40,000 किलोमीटर्स। दूसरे हैं क्लॉडियस टॉलेमी जो थे, उन्होंने सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया था। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर, वो किसने दी थी, क्लॉडियस टॉलेमी है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट ने क्या ज़ीरो का डिस्कवरी किया, पर उसके अलावा एस्ट्रोनॉमर भी थे आर्यभट्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो एक रिवॉल्विंग बॉडी है। अर्थ क्या किसके अराउंड रिवॉल्व, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ एक रिवॉल्विंग बॉडी है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है सन के। ये किसने बताया था, आर्यभट्ट ने ये डिस्कवर किया था। अब कुछ अरेबियन ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अल बिरूनी, इब्न बतूता। इन लोगों ने क्या किया, द नेम्स ऑफ अल बिरूनी, अल इदरीसी, इब्न बतूता एंड इब्न खल्दून आर फेमस फॉर देयर ट्रैवलिंग एंड राइटिंग्स। ये क्या थे, ट्रैवलर्स थे बेसिकली, एक से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे और उस जगहों के बारे में लिखा करते थे। तो इनके अकाउंट से भी हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। तो इब्न बतूता ने इंडिया विज़िट किया था और 13th, 14th और 15th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने डिस्कवरीज़ की, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन और जेम्स कुक। तो क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करते हैं, ये बहुत फेमस एक्सप्लोरर है, नेविगेटर है। इन्होंने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1497। वास्को ड गामा की बात करते हैं फिर, अ पोर्चुगीज़ नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर सेल्ड अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड दस ही रीच्ड इंडिया इन 1948। क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद
वास्को ड गामा इंडिया ट्रैवल किए थे, वो पोर्चुगीज़ नेविगेटर थे। उसके बाद फर्डिनेंड मैगेलन, एक और पोर्चुगीज़, जो कि 1519 में पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले थे। Magellan was killed on his journey, but one of his ships completed the voyage. All these voyages gave invaluable geographical information about the world. The Straits of Magellan are named after him. Captain James Cook की बात करते हैं, a British navigator and one of the world's greatest explorers, commanded 3 voyages to the Pacific Ocean and sailed around the world twice. उसके बाद स्टीम इंजन का डिस्कवरी, जो कि जेम्स वॉट ने किया था, वो भी एक चेंज है, रिवोल्यूशन है ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में भी स्टीम इंजन का डिस्कवरी का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हो पाता अगर स्टीम इंजन नहीं डेवलप होता। इमैनुअल कैंट की बात करते हैं। इमैनुअल कैंट भी एक जोग्राफर थे, was a famous German explorer, philosopher and geographer. His keen observation on the matters of geographical phenomena established many new ways of thinking. अच्छा, अब कैंट की फ़िलासफ़ी को कैंटियनिज़म बोलते हैं, जैसे कि गैसियस मास हाइपोथेसिस, ऑरिजिन ऑफ अर्थ में जो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं गैसियस मास हाइपोथेसिस के बारे में, 1755 में आया था जो। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फिर कार्ल रिटर, इन सब ने जो है अलग अलग चीज़ों में क्लाइमेटोलॉजी का जो बुक्स लिखा था कार्ल रिटर ने, वो बहुत फेमस है। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो जर्मन स्कॉलर और जोग्राफर थे, इन्होंने मॉडर्न जोग्राफी की खोज की थी। तो कॉस्मोस नाम की जो बुक थी, ये इनकी लिखी हुई है। जो कार्ल रिटर थे, इन्होंने डिटर्मिनिज़म का जो व्यू दिया था। डिटर्मिनिज़म क्या होता है कि अपनी ह्यूमन बींग्स जब अपने मर्ज़ी से नेचर में चेंज लाते हैं और नेचर में अपनी डिस्कवरीज करते हैं, चेंजेस लाते हैं, तो उसे डिटर्मिनिज़म बोलते हैं। ग्रीक स्कॉलर्स में सबसे ओल्डेस्ट स्कॉलर जो है वो स्ट्राबो को कहा जाता है। स्ट्राबो वाज द फर्स्ट टू कंसीव द कंप्लीट जोग्राफिकल फर्स्ट ट्रीटाइज। जो फर्स्ट ट्रीटाइज लिखी थी जोग्राफ़ी पे, वो स्ट्राबो ने लिखी थी, कंप्राइजिंग मैथमेटिकल, फिज़िकल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल जोग्राफी। मॉन्यूमेंटल वर्क जोग्राफिका उनका वर्क है, उनका ट्रीटाइज है। तो वो स्ट्राबो ने सबसे पहला ट्रीटाइज जो लिखा था वो था जोग्राफिका। हम जोग्राफ़ी एज ए डायनामिक साइंस, ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड वी आर गोना मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।